इस महीने हम विचार कर रहे थे प्रभु मसीह के द्वितीय आगमन पर। This month we have been concentrating on the second coming of Sri Lord Jesus Christ. और हमने बहुत सी चीज़ों को देखा प्रभु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में। We looked lot of things about the second coming of Sri Lord Jesus Christ. Today I am going to concentrate on something further on the same line. और आज मैं उसी में आगे कुछ विचार करने का सोच रहा हूँ। So I am going to read from Revelation chapter 7 verses 9 onwards. So मैं प्रकाशित वाक्य उसके 7वां अध्याय उसके 9वें पद से आगे पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb. All the angels were standing around the throne and around the elders and around the 4 living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshipped God, saying, Amen. Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. Then one of the elders asked me, These in white robes, who are they, and where did they come from? I answered, Sir, you know. And he said, These are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will spread his tent over them. Never again will they hunger. Never again will they thirst. The sun will not beat upon them, nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd, and he will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. यहाँ पर यूहन्ना जो दर्शन देख रहा है वह स्वर्ग का चित्रण कर रहा है। Here John the Revelator is seeing the revelation, a glimpse of heaven, what the heaven looks like and how it's going to be, कि स्वर्ग किस तरह दिखाई देता है और वह कैसा होगा। And he is talking about that there will be no hunger, there will be no thirst, there will be no problem there. और वहाँ कहता है कि वहाँ पर न भूख होगी और न प्यास होगी
और न कोई परेशानी होगी। एंड द लॉर्ड इज गोइंग टू वाइप अवे ऑल द टीयर्स, और परमेश्वर जो है वह सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। That's a beautiful place that he is talking about. But to reach here, there's a long journey before. This incident that John the Revelator is seeing, it is coming after the second coming, maybe about 7 years after the second coming. और ये जो घटना जो यूहन्ना देख रहा है, यह शायद प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के 7 साल के बाद होने वाली घटना है। So I'm going to walk you through what's going to happen from the second coming and onwards. और मैं आपको उन द्वितीय आगमन से यहाँ तक की कुछ घटनाओं पर ले जाऊंगा। Maybe probably you heard about 2012, और हो सकता है कि आपने 2012 के बारे में सुना होगा। If you do a search on Google, you will find lot of things on this. अगर आप गूगल में सर्च करें तो आप बहुत सी चीज़ों को उसमें पाएंगे। Many people are thinking that in 2012 the time of tribulation is going to start. और बहुत से लोग सोचते हैं कि 2012 में जो सताव का समय है वह शुरू हो जाएगा। I'm not sure whether it will happen in 2012 or not. मैं नहीं जानता कि ये 2012 में होगा या नहीं, but I'm sure one day it is definitely is going to happen. किंतु मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ कि ये एक दिन निश्चित रूप से होगा। The only thing that will be stopping it or delaying it will be the spread of the gospel. केवल एक ही चीज है जो इससे शायद थोड़ा पीछे आगे धकेल सकती है, वह प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का पहुंचना। Because the Lord Jesus Christ said that when this gospel will be preached to all nations and to every tribe, then the end will come. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब यह सुसमाचार दुनिया के छोर तक हर जाति में पहुंच जाएगा, तब दुनिया का अंत होगा। And we look into this whole story that we see that this end is going to come because the sin will be at its peak. और ये अंत इसलिए होगा क्योंकि पाप अपनी ऊंचाइयों में पहुंच चुका होगा। And the people will reject God. और लोग जो है परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे, इस कारण यह सब कुछ होगा। If you look back into the history, there was one more time when God destroyed the earth. और अगर आप इतिहास में पीछे की ओर देखें तो एक बार और परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नाश किया था। And that was the time of the flood at the time of Noah. और वह नूह के समय का जो जल प्रलय था। And we see a parallel story in Indian culture also. और हम भारतीय इतिहास में भी एक उसके समान घटना को देखते हैं, जब मनु नाम का एक व्यक्ति था जिसको मछली ने कहा कि जहाज बना, और उसने जहाज बनाया और वह जहाज में बच गया और पूरी दुनिया पानी में डूब गई और सब कोई नाश हो गया और मनु भर बचा। और जो बाइबल की घटना है वह इस प्रकार है कि नूह को परमेश्वर ने कहा कि जहाज बना, और उस जहाज में नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 लड़के और उनकी पत्नियां, ये 8 लोग उस जहाज में चले गए, और उसके साथ सारे जानवर, इस दुनिया के सारे जानवर उस जहाज में गए जो पृथ्वी पर चलते हैं। और वे जहाज में जाने के बाद इस पृथ्वी पर जल प्रलय आया और पानी सारे पहाड़ों से ऊपर उठ गया और सब लोग मर गए।